I want you to turn your Bibles with me to the book of Luke chapter 24. और चलिए निकालेंगे इस समय लूका के 24वें अध्याय में And let's read from verse 13 onwards. और आइए पढ़ेंगे उसके 13वें वचन से। It says, Now behold, two of them were traveling that same day to a village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem. देखिए वचन में लिखा है, देखो उसी दिन उनमें से दो जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। Here we see two people यहां हम देखते दो लोगों को traveling to a village called Emmaus. वे जा रहे एक गांव को जो कि गांव का नाम है इम्माउस। Listen very carefully. बड़े ध्यान से सुने। And the first thing that I want you to see this, और देखिए पहली चीज जो चाहते हैं कि आप देखें, that this is not just a physical journey, it is a spiritual one. ये देखिए महज एक शारीरिक यात्रा नहीं थी लेकिन साथ ही साथ एक आत्मिक यात्रा भी थी। Listen carefully. ध्यान से सुने। Now Jerusalem represents 3 things. I want you to write it down. और देखिए यरूशलेम जो है 3 चीजों का प्रतीक है। देखिए चाहते कि आप लिख लीजिए। In the Bible, Jerusalem represents 3 things. देखिए बाइबल में यरूशलेम 3 चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। It is a place of promise. देखिए ये जो है प्रतिज्ञा की जगह है। It is a place of divine encounter. और ये दैवीय मुठभेड़ का स्थान है। And it is a place of fulfilled prophecy. और साथ ही साथ भविष्यवाणियों की परिपूर्णता का भी यह स्थान है। The first one, the place of promise. God told Abraham, He says, I will bring you from the land of Egypt into the land of Canaan. That was Jerusalem and the surrounding places. Can I have a good amen, somebody? देखिए पहला प्रतिज्ञा का स्थान है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुम्हें मिस्र से कनान देश में लेकर आऊंगा। देखिए ये वहीं पर यरूशलेम से वहीं यह स्थान कहलाता है। Jerusalem was the place of divine encounter. That's the place where the temple was. और देखिए यरूशलेम जो है दैवीय मुठभेड़ का स्थान है और यहीं पर देखिए मंदिर बनाया गया था। And the future temple is also going to be there. और भविष्य में बनने वाला मंदिर भी देखिए वहीं होगा। How many of you listening right now? और कितने लोग सुन रहे Can हैं? I just add one point so that you will understand how this recent war that is happening is tied to this? How many of you want to know और this? देखिए एक पॉइंट जोड़ना चाहते हैं ताकि आप समझ सके कि अभी जो वर्तमान में जो जंग चल रही है जो किसे इससे जुड़ा हुआ है आप समझ जाएंगे। The current war that we are seeing right now, और अभी वर्तमान में जो युद्ध और जंग लड़ाइयां आप देख रहे हैं, in that war, उस लड़ाई में the Arab nations secretly don't want Iran to win the war. How many of you listening? Oh, you did not understand. अरब राष्ट्र जो है गुप्त से देखे नहीं चाहते हैं कि ईरान इस जंग को जीते। Hello. सुनिए, They are against Iran. They are actually with America and Israel. Hello, are you with me right now? देखिए वो ईरान के दरअसल खिलाफ में है और वे अमेरिका और इजराइल से देखिए उनके समर्थन में है वे। But there will come a time लेकिन ऐसा भी दौर और समय when आएगा all the Arab nations will be one. जब सारे जो अरब देश जो है वो एक हो जाएंगे And they will come against the nation of Israel. और फिर उसके बाद वे इजराइल देश के खिलाफ में आएंगे। Hello. सुनिए, Jerusalem will be surrounded. और यरूशलेम को घेर लिया जाएगा। This is a second phase. Listen. And during that time, और देखिए ये दूसरा पड़ाव I और don't उस समय know में how long we have for that. और पता नहीं कितना ज्यादा समय हमारे पास के लिए। And then a man will rise. फिर एक मनुष्य उठेगा And he will bring peace between the Jews and the Arabs. और देखिए वो पुरुष जो है यहूदियों और अरब के लोगों के बीच में शांति कराएगा। And one of the peace things why the Jews will listen to him is because he will allow them to build the third temple. और देखिए एक कारण से कि क्यों यहूदी लोग उसकी बात मानेंगे वो ये है कि वो इजाजत देगा तीसरा मंदिर बनाया जाए इसके लिए। Then the sacrifices will start. That is why Jesus said, when you see the abomination of desolation standing in the temple, run to the hills. और देखिए यीशु ने कहा कि जब तुम उस Oh, you घृणित do not वस्तु understand. को मंदिर में खड़ी देखो तो भागो पहाड़ों पर। This is so important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। He will exalt himself before above God also. देखिए वह जो है अपने आप को परमेश्वर से भी ऊंचा करेगा There is time for that. और इसके लिए समय है। But all these things are working towards this goal. और देखिए ये सारी चीजें जो इसी लक्ष्य की ओर काम कर रही So हैं। I'm talking to you about prophecy. We are a prophetic ministry. Come on, help me. और देखिए Someone. भविष्यवाणियों के बारे में आपको बता रहे हैं और हम भविष्यवक्ताई सेवकाई हैं। The third thing is the
Jerusalem is the place of fulfilled prophecy. You see prophetic things happening in Jerusalem. Write it down. आप देखते हैं तीसरी चीज यह है कि यरूशलेम जो है भविष्यवाणियों की परिपूर्णता का स्थान है। देखते हैं भविष्यवाणियां वहां पूरी होती हैं। If you want to grow in the word of God, देखिए अगर आप परमेश्वर के वचन में बढ़ना चाहते हैं just don't listen to the word. तो महज आप वचन को सुनिएगा ही नहीं। Is this blessing you already? कि आपको आशीष मिल रही है, This is so important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Some of you are sitting without the Bible आप also. में से कुछ लोग देखिए बिना बाइबल लिए बैठे हुए हैं। It's really sad. बड़े दुख की बात है। The second thing I want you to notice over here, और दूसरी चीज चाहते हैं कि आप इसे गौर करें। give me Luke 24 and verse 13, please. लूका का 24वां अध्याय 13वां वचन। Look what it says. देखिए वचन क्या कहता He है। says they were walking away from Jerusalem towards Emmaus. और देखिए यहाँ पर हम देखते हैं यरूशलेम से दूर वो इम्माउस की ओर जा रहे थे। They were walking away from this place of promise, place of encounter, place of prophecy. They were walking away from it to the place of called Emmaus. देखिए वे यरूशलेम नामक जगह जो कि प्रतिज्ञा की जगह है, जहां पर मुठभेड़ की जगह है और वहां पर भविष्यवाणी की परिपूर्णता की जगह से निकलकर वे इम्माउस गांव की ओर जा रहे थे। Why were they walking away from such a place? और देखिए क्यों वे इस तरह के स्थान से दूर जा रहे थे। Look at somebody and say they were disappointed. किसी को देखकर कहें वे निराश थे। Tell your other neighbor they were disappointed. दूसरे पड़ोसी से कहें कि वे निराश हो गए थे। Please listen to this. सुनिए ध्यान They से। had high expectations from Jesus. देखिए उन्होंने यीशु से बड़ी अपेक्षाएं और आशाएं लगा रखी थी। They thought that Jesus will take over the Romans and establish God's kingdom. और उन्होंने ऐसी अपेक्षा की थी कि यीशु जो है रोमी साम्राज्य को हटा देंगे और परमेश्वर के राज्य को स्थापित They were करेंगे। expecting something to happen. और उन्होंने अपेक्षा लगा रखी थी ऐसी कुछ होने की, Nothing of this happened. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। And that is why और इसी वजह से they drifted away from that place where God was working. तो वे उस स्थान पर जहां परमेश्वर काम कर रहा था वहां से बहकर दूसरी ओर चले गए। सब जो मेरे साथ बोलिए, वो वहां से बहक गए। कहां से? जहां पर प्रभु कार्य कर रहा था, प्रभु के सामर्थ्य का प्रदर्शन हो रहा था। Just few days back, Jesus had entered Jerusalem. बस कुछ ही दिन पहले हम देखते हैं कि यीशु यरूशलेम में आए। Imagine what a revival. और जरा कल्पना करें कितनी बड़ी बेदारी आ गई The थी whole city was on the street. और पूरा शहर जो है सड़क पर आ गया था। Come on, yes or no? हाँ या नहीं? Jesus, Jesus, everybody shouting Hosanna. They are moving away from that place. और सभी लोग वहां पर यीशु यीशु होसाना होसाना की ललकार कर रहे थे और ये लोग उस जगह से निकल रहे थे। Write it down. लिख लीजिए। Disappointment has a direction. निराशाओं की एक दिशा होती है। जोर से बोलिए, निराशा की एक दिशा होती है। जोर से बोलिए, निराशा की दिशा होती है। वो दिशा कौन सी है बताऊं? मैं बताऊं आपको, परमेश्वर से दूर। निराशा की दिशा होती है। Disappointment has a direction. Whenever a man, a woman is disappointed, he or she will always move in the opposite direction to God. देखिए जब कोई स्त्री पुरुष निराश हो जाते हैं तो देखिए वो जो है परमेश्वर के विरुद्ध दूसरी दिशा में चले जाते हैं। Jonah was disappointed with God. When the word of the Lord came to Jonah, God told him, go towards Nineveh. He said, no, no, no. Now Nineveh was this side and Tarshish was this side. So he said, no, no, I'm not going in your direction, God. I'm going to go away, because he was disappointed with God. Look at somebody and say, disappointment has a direction. किसी को देखकर कहें निराशा की एक दिशा होती है। You will stop praying. आप प्रार्थना करना बंद कर देंगे। You will stop reading the word of God. आप परमेश्वर का वचन पढ़ना बंद कर देंगे। And you may give excuses. No, actually I'm busy. I have to fill water. Oh, water, really? और उसके बाद देखिए आप अन्य को बहाने भी देने लगेंगे। ओ दरअसल मैं व्यस्त था और मुझे पानी भरना पड़ता है घर में। I have work. और बहुत ही काम आ गया था I have मुझे। little children. मेरे पास छोटे छोटे बच्चे भी हैं। Disappointment. Look at somebody straight. मेरी तरफ देखिए इस वक्त. Disappointment has a direction. निराशा की एक दिशा होती है। Can I tell you something? क्या आपसे कुछ कह सकते हैं? It will blow your mind. ये आपके दिमाग को हिला देगा। Listen, before your greatest encounter, before your greatest miracle can happen, enemy will throw disappointment. और आपका सबसे बड़ा you missed आश्चर्य it, you होने missed से it. पहले परमेश्वर आप पर निराशा को फेंकेगा। I want you to listen very carefully. और चाहते बड़े ध्यान से सुने। How many listening right now? किधर सुन रहे हैं? In the world, संसार में the crash comes after the high. गिरना Oh, जो you did नहीं, not. ऊंचाई पर जाने के बाद आता है। Tell your neighbor, तुम्हें चाय की जरूरत है आज.
In the world, संसार में, the crash comes before the high, after the high. और देखिए वहां पर गिरना जो है या फिर देखिए हमला जो वहां ऊपर से नीचे आता Let me give you an example. है। चलिए, Gold touch. And all the market pundits were saying it will cross 250. Come on, yes or no? Hey, come on. I'm not talking. You Christians, some of you are in a hole. Kuwa. The crash comes after a high. जब आदमी ऊंचाई पर आता है संसार में, उस ऊंचाई से गिर जाता है तो बोलते हैं कैसा गिरा. But in God's kingdom, लेकिन परमेश्वर के राज्य में you need to understand. आपको समझने की जरूरत है, The crash comes before the God can take you on high. परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले जाए उससे पहले ही इस तरह का देखिए गिरावट आएगी। Now this is normal. इतना दुख से गुजरेंगे मसीह, इतना डिसअपॉइंटमेंट होता है कि वो प्रार्थना ही छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं. And some of you, your breakthrough was so close. और आप में से कुछ लोगों का आशीर्वाद इतने करीब आ गया था, You can literally smell the breakthrough. और लगभग आप अपने आशीर्वाद की सुगंध भी ले सकते हैं। सुगंध ले से, गंध नहीं, सुगंध. ब्रेकथ्रू की सुगंध होती है, हार की गंध होती है. You can literally smell the fragrance of your breakthrough. You're so close. You can feel it, but everything you're seeing broken, सब कुछ बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, और आप बोलते हैं छोड़ यार, ये प्रार्थना वाला कुछ नहीं होता है. I'm telling you, कह रहे हैं आपसे, this is a word ये वचन है for somebody here tonight. किसी के लिए यहाँ पर आज की रात। Oh, come on, somebody. चलिए कोई तो, Because you see, church, क्योंकि आप देखते the कलीसिया, devil knows. शैतान जानता है ये भाई साहब अगर ऊपर जाएगा मेरी बैंड बजा देगा, तो इसको ये ऊपर जाने से पहले अभी ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर नहीं है, नीचे जमीन पर है, उसको गाड़ दो. शैतान तुम्हें गाड़ने की कोशिश करता है, खुदा तुम्हें उस गाड़ने से बचाएगा आज. Raise your hand and begin to speak in tongues. चलिए अपने हाथ उठाएं और अन्य भाषा बोलना शुरू करें इस Somebody वक्त। begin to speak in कोई तो अन्य tongues. भाषा बोले इस वक्त। Sebadakalabro sheketelebe. Raise both your hands and begin to speak in the Holy चलिए अपने Ghost. दोनों हाथ उठाएं, पवित्र आत्मा में बोलना शुरू करें इस वक्त। Those are watching me, begin to speak in tongues. चलो देख रहे हैं, मैं अन्य भाषा बोलना शुरू करें। You are building yourself in the Holy Spirit. आप अपने आप को पवित्र आत्मा में मजबूत बना रहे हैं। Raise your voice and begin to pray. चलिए आवाज ऊंचा उठा प्रार्थना का शुरू करें। Somebody raise your hand and say, Holy Spirit fire fall on all of us. और कोई अपने हाथ उठा करके पवित्र आत्मा की आग हर एक पर उतर आए। Holy Spirit fire move on everyone. पवित्र आत्मा की आग हर एक पर बढ़ रहा है। Every arrow of disappointment, निराशा का हर एक तीर, every arrow of depression, तनाव का हर एक तीर come out in Jesus' name. भरा है यीशु के नाम में। Begin to pray, begin to pray, begin to pray. चलिए प्रार्थना का शुरू करें, शुरू करें, शुरू Every करें। arrows of defeat and failure be burnt by fire. जोर से बोलिए. हार और नाकामी का हर एक तीर आग से जल जाए यीशु के नाम In the में। name of Jesus. यीशु के नाम में। Bring them out of every pit, oh God. और प्रभु हर एक गड्ढे से ने बाहर ला। Bring them out of every pit of failure and oppression, oh God. प्रभु हर एक सताव और है नाकामी गड्ढे से ने बाहर ले आ। Somebody raise your voice. कोई तो आवाज ऊंची उठाए। Some prayer warrior raise both your hands. कुछ पता योद्धा दोनों हाथ उठाए। Holy Spirit flow. पवित्र आत्मा बहे। Holy Spirit flow पवित्र आत्मा बहे। on everyone. हर एक पर। Upon everyone. हर एक पर। All those who are watching, lift your voice and pray with me. जो लोग भी देख रहे हैं, मैं आवाज ऊंचा उठा प्रार्थना करें हमारे Tonight साथ। is your night. आज की रात आपकी रात है। God is going to take you to a new level. परमेश्वर को नए स्तर पे ले जाने वाला है। Lift your hand and say, Oh Lord, you are the lifter of my head. अपने हाथ लगा कहे परमेश्वर तू मेरे सिर को ऊंचा करने वाला प्रभु My है। dear lady, you need to pray. अब बहन आवाज ऊंचा कर प्रार्थना My करें। dear brother, you need to मेरे pray. भाई आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। In the name of यीशु Jesus. के नाम में। Raise your hand and say, Oil of gladness. हाथ उठा कर कहे आनंद का तेल। You will turn my mourning into dancing. अब प्रभु तू इस मेरे माथा को नाच में बदल You देगा। need to prophesy. भविष्यवाणी करने की जरूरत You है। will turn my mourning into dancing. तू मेरे मातम Prophesy. को नाच में बदल देगा। तू भविष्यवाणी मेरे करे। मातम को नाच में बदल देगा. तू मेरे मातम को नाच में बदल Say देगा। loudly, you will turn my mourning into dancing. और जोर से बोलिए, तू मेरे मातम को नाच में बदल देगा। In the name of Jesus. यीशु के नाम The में। oil of gladness. हर्ष का तेल। The oil of gladness. हर्ष का तेल Come upon me now. मुझ पर आ जाए अभी। Say that 5 times. अब 5 बार बोलिए। Those are watching, say that 5 times. और जो देख रहे 5 बार बोलिए। In the mighty name of यीशु के Jesus. समर्थी नाम में। And God's people said, परमेश्वर के लोगों ने कहा, Amen. Let's give Jesus a clap offering right now. जोर से ताली बजाएं इस वक्त। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Look at somebody and say, the ground is being prepared.
किसी को देख कर कहे मैदान जमीन तैयार हो रही। जमीन तैयार हो रही है। अच्छा किसान जो है, जमीन पहले जो आप लोग शहरी बाबू लोग हैं। माय फादर वाज अ फार्मर, सो पिताजी किसान थे। so you when you we have to put the rice, देखिए जब चावल का बीज बोने you से have to पहले put the plow देखिए हल चलाना पड़ता and remove all the weeds. और सारे जंगली पेड़ जो पौधे जो उनको निकालना Come होता on, है। anybody listening over here? Yes. You have to remove the weeds. So those things are going and the word is coming in your life. और जब वो चीजें निकल जाती है और फिर वचन आपके जीवन में आता है। Yes. So write it down, please. तो लिख लीजिए। Disappointment has a direction. निराशा की भी एक दिशा होती है। Many Christians, they देखिए, बहुत get disappointed because they are not waiting for clarity. They are just living in confusion. और देखिए बहुत सारे जो विश्वासी जो है देखिए निराश हो जाते हैं, क्योंकि देखिए वे स्पष्टता का इंतजार नहीं करते हैं, बस गड़बड़ी और उलझन में जीते रहते हैं। Said everyone, Christians are not waiting for clarity. Say it again, Christians are not waiting for clarity. They are walking in confusion. मसीही लोग जो है स्पष्टता का इंतजार नहीं करते, बस वे गड़बड़ी और उलझन में चलते रहते हैं। Say it again, they are not waiting for clarity. They are walking in confusion. How many of you listening right कितने now? लोग सुन रहे हैं इस वक्त? Please listen. सुनिए ध्यान से। When God does not act according to our timeline, according to our schedule, जब परमेश्वर देखिए हमारे समय सारिणी के मुताबिक हमारे शेड्यूल के अनुसार काम नहीं करता, people begin to walk slowly away from God. तब लोग धीरे धीरे परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं। How many of you listening, church? कितने सुन रहे हैं कलीसिया? Today, if you're walking away from God, अगर आज आप परमेश्वर से दूर जा रहे I हैं want to say this, church. तो आपसे कहना चाहते हैं कलीसिया, Don't be like those two disciples. उन दो चेलों के जैसे मत बने। Don't be like those two उन disciples. दो चेलों के जैसे मत बने। Go to Psalm 73, please. चलो जाएंगे भजन संहिता का अध्याय Let's read 73 from verse 16. और चले पढ़ेंगे उसे। This is a word for you. This is a prophetic. How many of you, this is a prophetic word for you? और ये भविष्यवाणी वचन है आपके लिए। Psalm chapter 73 and verse 16. देखिए भजन संहिता का अध्याय 73 उसका 16वां Open वचन। your Bibles, please. चले बाइबल खोलें। Look what the word says. देखिए वचन क्या कहता है। When I thought how to understand this, it was too painful for me. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है कि जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो ये मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक हो गया। Sometimes the things that are happening around us, और- when we think about it, कैसे होगा, क्या होगा, it's very painful for us. कभी कभी जो चीजें हमारे चारों ओर घट रही होती है और हम जब सोचते हैं कैसे होगा क्या होगा, तो देखिए ये बहुत दर्दनाक हो जाता है हमारे लिए। Read verse 17. अब 17वें वचन में पढ़ें। It says, until I went into the sanctuary of God, then I understood. Everyone said, then I understood. Clarity will never come when you go away from God. Clarity will come when you go towards God. देखिए स्पष्टता आपके पास तब नहीं आएगी जब आप परमेश्वर से दूर जाते हैं। स्पष्टता आपके पास तब आएगी जब आप परमेश्वर के और करीब जाते हैं। Look at somebody and say, clarity will come when you go towards God. स्पष्टता तब आएगी जब आप परमेश्वर की ओर जाते हैं। Confusion, you will go more and more into darkness and confusion when you go away from God. जब भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, कि क्या करूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, at that time you must seek the Lord even more. Say praise the Lord. उस वक्त आपको परमेश्वर की खोज और भी ज्यादा करना चाहिए। How many of you are understanding right now? कि तो समझ रहे हैं अभी इस वक्त। It's like you go from your home to the ICU, you intensive care unit. Your home is also caring, but you go to intensive care. Everyone say intensive care. And if that doesn't work, you go to ICU. More care. Everyone say more care. और भी ज्यादा। Because तुम्हारी हालत खराब है। तुम्हारी सांस को भी देखते हैं, चल रही है सांस। कोई अपनी सांस देखता है क्या? जब नॉर्मल आदमी होता तो सांस वास नहीं देखता, चढ़ रहे सांस वास। वो तुम्हारे पेशाब को मॉनिटर करते हैं, तुम्हारे हर एक वाइटल साइंस को मॉनिटर करते हैं। कम ऑन, यस और नो? क्योंकि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हारी हालत ठीक नहीं। सो दे मॉनिटर एवरीथिंग अबाउट यू। तो आपके बारे में हर एक चीज को मॉनिटर करते हैं। सो इन द सेम वे, उसी तरह से जब आदमी की हालत खराब हो जाती है तो वो घर से रास्ते पे नहीं आना चाहिए, घर से वो आईसीयू में जाता है। इस तरीके से
if your prayer life is 15 minutes, then at least increase it to 30 minutes. So as you go into the presence of God, you will get more clarity. अगर आपका प्रार्थना जो मान लीजिए 15 मिनट का है तो कम से कम आधे घंटे पर जाएं, और जब आप इस तरह से बढ़ते हैं आपको और ज्यादा स्पष्टता मिलने लगेगी। When you go towards the light, जब आप उजियाले की ओर जाते हैं you will see more better than you are seeing right now. तो आप जैसा आप अभी देख रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर तब देखने लगेंगे। Please receive this word what I'm sharing with you. और ये वचन जो आपके साथ अभी बांट रहे हैं, मेहरबानी करके ग्रहण करें। पास्टर मला समजत नाही काय करायचं ते सोडून दिलं मी बायबल। वाह रे वाह बेटा वाह, खूप चांगलं केलंस तू. Now you will hit the beer, after you will hit the rock, then Johnny will lead you. Now I'm telling you, कह रहे हैं आपसे, this is the problem. यही तो समस्या है। I know one man of God. पासवान जानते परमेश्वर जन को, Whenever he used to face a trial, he would go in an extended season of fasting and prayer, seclude himself, and he would get answers from the Lord. जब भी किसी तरह की परीक्षा या प्रलोभन पढ़ते हैं तो देखिए वे जो है उपवास के सत्र में लग जाते हैं और फिर उसके बाद प्रभु की खोज में लग के फिर परमेश्वर से स्पष्टता को पा लेते हैं। Look at somebody and say, clarity comes in the presence of God. किसी को देख करके स्पष्टता परमेश्वर की उपस्थिति में से Come on, आती है। everybody want to go. Clarity comes in the presence of God. स्पष्टता आती है परमेश्वर की उपस्थिति में। Let's say you're a businessman, businesswoman. मान लीजिए आप कोई व्यवसायिक स्त्री पुरुष हैं, Business नहीं चल रहा है. अगर आपका कारोबार व्यवसाय नहीं चल रहा Don't stop it. तो रुके मत, Go to the presence of God परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं and say, God, और कहें प्रभु I stand before you. मैं आपके सामने खड़ा हूं, Help me what to do. मेरी मदद करके मुझे क्या इधर करना उधर चाहिए। से मत करो. वो सब टपरी पे बैठता है ना, करोड़ों का बात करता है, 5 रुपए का चाय नहीं खरीद सकते लोग. हाँ मेरा 100 करोड़ आने वाला है, बाद में बोलते देना छोटे का चाय का बिल देना. अरे तू 100-200 करोड़ की बात कर रहा है, तेरे पास 25 रुपए की चाय नहीं पिला सकता तू. ऐसे लोगों के साथ मत बैठ, जाके प्रभु की उपस्थिति में बैठ. आज प्रभु चाय नहीं देगा, कल पूरा हंडी देगा तेरे को, पूरा भरा हुआ. ये सब टपरी वपरी पे बैठने छोड़ दे ऐसे फालतू लोगों के साथ. Is anybody listening over here? क्या सुन रहे हैं आप? I want you to listen very carefully. This is a prophetic word, direct word for you. और चाहते हैं कि आप ध्यान पूर्वक सुनिए, ये भविष्यवक्ताई तौर पे सीधे आपके पास आ रहा हुआ वचन है। You didn't start your business, you didn't start your career. God started your business, your career, your house. Say amen. आपने अपना बिजनेस, अपना करियर शुरू नहीं किया, परमेश्वर ने आपका बिजनेस, आपका करियर, आपके घर को शुरू किया। कितने लोग बोल रहे हैं आमेन? ये मैसेज को आप वापस सुनिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए मैसेज. हाँ, मैं ऐसे ही मैसेज नहीं लेके आता हूं. Don't come to me after the message and say, what about my dream? What about my... I'll give you the whole dream then. Jacob's dream from the Bible. Let's go further right now. चलिए आगे बढ़ते हैं इस वक्त। Go to verse 17. No, sorry. Go to verse 14. जाएंगे 14 वचन में। 24:14. Hurry up. Look what it says. And they talked together. Everyone say they talked together. Come on, louder. And they talked together of all these things which had happened. Where? In Jerusalem. और वे साथ में इन सब बातों पर जो हुई थी, कहां? यरूशलेम में बातचीत करते हुए जा रहे थे। Please listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान में। They talked about what things? और देखिए किस चीज के बारे में बातचीत कर रहे थे। They could have spoken about the crucifixion. और देखिए यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में हो सकता है बात कर रहे होंगे। They must be saying, oh, we had so much of hope in this Jesus. He multiplied the bread 2 times. और हमारा पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंड ही नहीं रहना चाहिए तुम लोग. पब्लिक डोंट नो मिथि रिवर, नाउ दे नो हॉर्मुज. इन द ट्रेन पीपल आर टॉकिंग अबाउट हॉर्मुज नाउ. हेलो, आर यू लिसनिंग चर्च? आप सुन रहे हैं कलीसिया? एंड सेड एवरीवन, क्रिश्चियंस आर गुड टॉकर्स. जोर से बोलना, बाजू वाले को मत देख. Christians are good talkers. They know everything under the sun. They have information, but they don't have revelation. देखिए मसीहों के पास आसमान के नीचे हर एक प्रकार की जानकारी है, लेकिन उनके पास प्रकाशन नहीं है। They know about that man of God, they know about this man of God, and they are running from pillar to post. Please don't get me wrong. और गलत मत समझिएगा। Don't get me wrong. I tell you on your face. You have a lot of information. आपके पास बहुत सारी जानकारियां हैं, but you don't have revelation. लेकिन आपके पास प्रकाशन नहीं है। Your information, when it becomes revelation, if it does not become revelation, it's only talk and it's only a sermon. Somebody say, I'm listening right now.
देखिए, अगर आपकी जानकारी या प्रकाशन नहीं बनती तो सिर्फ ये बोलने के लिए बचा हुआ एक संदेश मात्र है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Said everyone, they were talking about the crucifixion. They were talking about the events. अरे ये चल रहा है, ये बॉम्ब फट रहा है, वो बॉम्ब फट रहा है, अरे फट रहा है, तू भी फट रहा है। Listen, lot of information. बहुत सारी जानकारियां। उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। You know, when you look at them, you will feel ये एनडीटीवी का एंकर है, इसको इतना मालूम है, अरे भाई मैं किधर से ऐसा लगेगा तेरे को। लेकिन you see their lives, they don't have anything in their lives. That is why the church is not able to impact the world. Please don't get me wrong. और इसी वजह से कलीसिया जो है दुनिया पर अपना प्रभाव नहीं डाल पा रही। मेहरबानी कर गलत मत समझिए। What information you have? किस तरह की जानकारी आपके पास है? You, the same information and better information the people of the world have. Come on, yes or no? और देखिए, उसी तरह की जानकारी जो संसार के दूसरे लोगों के पास भी होगी। Today everything is on the computer. Chat GPT, this is there. Who is fighting? Chat GPT will tell you this fellow is fighting. Gemini will tell you that fellow will fight tomorrow. Claude will tell you something else. They have all the information. But how to make sense of the information? Everyone say revelation. सभी लोग कहे प्रकाशन। Come on, everybody say revelation. सभी लोग कहे प्रकाशन। Hear me this. सुनिए अब, 6 months back, 6 महीने पहले, I don't put out these videos because I don't put out these videos. I'll tell you. I told my team, इन्होंने अपनी टीम से कहा, metals are going to crash. In one of my meetings in the studio, I told gold is going to fall. Now see how you're looking. What? And the gold was on top. Silver was on top. सोने का और चांदी का दर एकदम ऊंचे पर था। One fellow came to me. एक व्यक्ति आया, Pastor, you know, जब थोड़ा सा पैसा रहता है ना, एकदम भैंसे जैसा आवाज देता है। पैसा जब निकलता है ना, एकदम तोते जैसा हेलो ऐसा आवाज आता है। Pastor, you don't know about these things. I said, sir, you have information, I have revelation. इन्होंने कहा, आपके पास जानकारी है, मेरे पास प्रकाशन है। Look at somebody and say, किसी को देखकर कहें, don't have information, have revelation. जानकारियों को ही मत रखो, प्रकाशन को रखो। When I was in the UK some years back, कुछ साल पहले यूके में थे। first time I had gone to UK, पहली बार जब यूके गए थे, and I was like a boy in a zoo. Hello, little boy zoo. Anybody understand? कोई वो समझ- पहला टाइगर, मम्मा तो बग टाइगर तो बग, मम्मा बोलता है मला माहित है रे का बस. So I was first time I went to UK ना, तो पहली बार जब यूके गए थे, कुर्ला का छोकरा, you know. Come on, I went to UK. I said, wow, UK, wow, UK, and I found over there this crypto booths, crypto. Hello, crypto. अरे people are betting over their money. Pastor तुका कितने सांगो, अशे घालचे तुवे, तशे करचे. And I was looking. और देख रहे थे, That night God spoke to me. और उस रात परमेश्वर से बात किया, I saw all the booths broken. और इन्होंने देखा सारे बूथ को टूटते हुए, I said, what is happening? और इन्होंने पूछा ये क्या चल रहा है। I told the people next day. अगले दिन इन्होंने लोगों से कहा, I said, crypto is going to fall. Remove your money. और क्रिप्टो जो है गिरने वाला है, पैसे निकाल लो। He's saying, what all rubbish? और उन्होंने कहा, ये क्या बकवास बात है। No. नहीं। This is going to go up. ये ऊंचे पर जाने वाला। और 2 months, everything fell. 2 महीने में सब गिरावट आ गया। Everybody was doing, oh. सब लोग करने लग गए। Hello. I'm telling you the truth. सच्चाई बता रहे हैं आपको। It is not about me. This information God can, this revelation God can also give you. और देखिए, ये प्रकाशन जो है परमेश्वर आपको भी दे सकता है। I said God can give you this revelation. आपको भी प्रकाशन मिल सकता He है। will speak to you in a dream. वो आपसे स्वप्न में बात करेगा। I said He will speak to you in a vision. हमने कहा, वो आपसे दर्शन के जरिए बात Not करेगा। yesterday's biryani, but real vision. कल की Hallelujah. बिरयानी नहीं, लेकिन असलियत का दर्शन। Yes. I'm telling you. कह रहे हैं आपसे, This is what God is. They were talking. Everyone said they were talking about the things that had happened. Come on now. जो Hallelujah. बातें वहां हुई थी, उन पर वे आपस में बातचीत कर रहे थे। Said everyone, they had information, but no revelation, no interpretation. It's like you're talking in tongues. Shakarabarabarabadabadaba. For others, it is only a sound. But as a man of God who can have interpretation, that interpretation becomes prophecy. देखिए, जब आप अन्य भाषा बोलते हैं दूसरों के लिए तो सिर्फ एक आवाज Slow रहेगी, today, you are लेकिन slow परमेश्वर जन के पास जिसके पास अर्थ भी होता है, अनुवाद होता है उसका, तो वो अन्य भाषा बोलना जो भविष्यवाणी बन जाएगी। That is why people oppose tongues. If they had got the interpretation of the tongues,
there would not be any confusion. Come on, yes or no? और इसीलिए लोग जो अन्य भाषा का विरोध करते थे कि अगर उनके पास अन्य भाषा का अर्थ भी होता तो वे इसके खिलाफ नहीं आते। Paul says फिर पौलुस कहता है in book of 1 Corinthians 14, it says, pray that he who speaks in tongues, pray that he may interpret. पहले कुरिन्थियों के 14वें अध्याय में वहां पर उसने ऐसा कहा कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो इस बात के लिए भी प्रार्थना करे कि उसका अर्थ भी बता सके। Come on, hallelujah. चलिए, देखो तुम गाड़ी चला रहे हो, जब गाड़ी चलाते हो किधर तो पहुंचते हो ना, पहुंचते हो कि नहीं? क्यों गाड़ी का वैल्यू कैसे होता है? क्योंकि वो गाड़ी तुमको किधर तो लेके जाती है। सोचो ना, तुम गाड़ी खाली आवाज कर रही है जगह पे, वाह वाह वाह, कोई गाड़ी यूज करेगा क्या? नहीं यूज करेगा। बोले एसी अच्छा है, अरे बोले एसी रख, मेरे घर पे भी एसी। तो इन द सेम वे अगर टंग से इंटरप्रिटेशन आता तो इतना झगड़ा होता ही नहीं ना फिर। ओ कम ऑन समबडी, मालूम तो पड़ता कि भाई किसका असली है किसका नकली है। I want you to understand what I'm saying. चाहते कि आप समझ जाए जो कह रहे हैं अभी। Information is good, जानकारियां अच्छी हैं, but when you go into that mode of revelation, लेकिन उसके बाद जब आप प्रकाशन के स्तर में आते हैं, you have the word of God. आपके पास परमेश्वर का वचन है, But when that word speaks to you, लेकिन जब वो वचन आपसे बात करता है you know it is Rima. तो आप Hallelujah. जान जाए ये तो रेमा वचन है। Somebody say कोई hallelujah. तो कहे हालेलुया, I said हमने hallelujah. कहा हालेलुया। You know God is speaking to you. आप जान जाए परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। Everybody reads the Bible. हर कोई बाइबल पढ़ते हैं, But जब तुम बाइबल पढ़ते हो, वो वचन आपसे बात करता है, ऐसा बात करता है कि मानो खुदा वहां पर बैठ के आपसे बात कर रहे हैं। माय फ्रेंड, योर लाइफ विल नॉट बी द सेम। मेरे दोस्त, आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। लिफ्ट योर हैंड एंड से लॉर्ड स्पीक टू मी लॉर्ड। अपने हाथ लगा बोलिए प्रभु मुझसे बात कर प्रभु। से लॉर्ड आई नीड रेवलेशन। और क्या प्रभु मुझे प्रकाशन चाहिए। से हेल्प मी टू अंडरस्टैंड ओ और गॉड। क्या प्रभु मुझे मेरी मदद कर समझने लिफ्ट की। योर हैंड एंड बिगिन टू प्रे फॉर अंडरस्टैंडिंग। चलिए अपने हाथ में और समझदारी के लिए प्रार्थना करें। Proverbs chapter 3 says, in all your getting, get understanding. नीति वचन का 3रा अध्याय ऐसा कहता है कि सब कुछ तो प्राप्त करे लेकिन समझ को प्राप्त कर। You brought a property, now get that understanding how to maximize that property. Somebody say I receive it. आपने संपत्ति खरीद लिया, अब आप समझदारी के प्रार्थना करें कि कैसे उस संपत्ति के जरिए आप कुछ बढ़ा कर सकते तेरे हैं। पास 1.5 करोड़ पड़ा हुआ है, अरे बाबा वो 1.5 करोड़ तू यूज नहीं करेगा, अगर इसको बराबर अंडरस्टैंडिंग से नहीं करेगा, वो इन्फ्लेशन से घट जाएगा। वो से गॉड मुझे अंडरस्टैंडिंग दे। परमेश्वर मुझे समझदारी दे। अंडरस्टैंडिंग बहुत सारे क्षेत्र में, इस इज ब्लेसिंग यू सर। क्या आपको आशीष पहुंचा रही है? लॉर्ड गिव मी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग रियल एस्टेट, अभी डिप आने वाला है। अरे सर अब कौन सी दुनिया में रहते हैं यार। आई विश देयर वाज अ crowd that can understand what I'm saying. See, you are only interested only interested, pastor जरा हात ठेवा, माझं लग्न होऊ द्या। अरे लग्न होऊन काय दगड खाशील? पास्टर लग्न हो गया, माझा लग्न हो गया, हस्बैंड एंड वाइफ के हवा पानी खाएगा, पैसा चाहिए कि नहीं? टेल योर नेबर दिस इज प्रैक्टिकल गॉस्पेल। अपने पड़ोसी को बोलिए ये लागूदार जीसस preached for 3 days, after that he gave them bread and fish. Jesus is practical. Somebody say yes. प्रचार किया, फिर उसके बाद उन्हें खाने के लिए मछली और रोटी दिया। Jesus, people came to Jesus, he healed them. It's practical gospel. और देखिए लोग यीशु के पास आए और यीशु ने चंगा किया। देखिए ये व्यवहारिक लागूदार सुसमाचार Peter है। had a need. लोगों की जरूरतें थी। He said, Lord, 31st March is gone. I have to pay my tax. Jesus said, don't worry, I'll take care of the tax man. The gold is coming. Oh, come on, receive right now. Jesus told Peter, go, you don't need to use a net now, use a hook because your faith is grown. और यीशु Just ने पता put से one hook, the gold will come. बस तुम्हें जाल की जरूरत है, बस एक कांटे की जरूरत है, बस Look at somebody and say, you need only one hook now. अपने पड़ोसी को देखकर कहे आपको बस एक कांटे Just की जरूरत one है। hook, not a net के लिए इतना जगह लगता है घर में। हमारे मुंबई में ऐसे ही घर का कितना तंगी है, ना स्पेस। So to keep a hook is easy. You can carry it in your pocket also. तो एक कांटा रखना बहुत आसान है, देखिए आप अपनी जेब में रख के भी जा सकते Wherever you throw, gold will come. हैं। जाके Hallelujah. आप फेंकेंगे देखिए सोना निकल के That आएगा। is revelation. Look at ये है somebody and say, प्रकाशन। receive that revelation. तो अपने हाथ लगा के ग्रहण करो इस प्रकाशन को। If you can receive this word, you can laugh at me. Whatever you want to do, you do, sir. But be careful, हाँ? नहीं तो झटका आएगा 440 का। कुछ भी मत बोल। If you start praying for 7 days, Lord, give me understanding in a particular area of your life. I promise you, within a month, your life will never be the same.
Lift your hands and say, Lord, give me understanding. अपने हाथ रखा है, प्रभु मुझे समझदारी दे। You are a businessman. अगर आप कोई You are a बिजनेसमैन हैं, real estate fellow. अगर आप real estate You are a के media fellow. अगर आप मीडिया के व्यक्ति You हैं, are a career fellow. आप करियर के व्यक्ति हैं, God, give me understanding, oh God. कहे परमेश्वर मुझे समझदारी दे Lift your प्रभु। hands and begin to pray right now. चलिए अपने हाथ उठा प्रार्थना का शुरू करें God इस is वक्त। giving understanding. परमेश्वर को समझदारी दे In the रहा है। mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में। Somebody say, I receive this word. कोई तो कहे मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ, And somebody say, I receive it. कोई तो कहे मैं ग्रहण करता हूँ। And God's people said, और परमेश्वर के लोगों ने कहा, Amen. Is this helping you, somebody? कैसे मदद हो रही है आपको? So the first thing we saw तो पहली चीज हमने देखे is clarity. वो है स्पष्टता। Clarity comes when we go towards God. Confusion comes when we go away from God. स्पष्टता तब आती है जब आप परमेश्वर की ओर जाते हैं, और गड़बड़ी और उलझन तब आती है जब आप परमेश्वर से दूर जाते हैं। The second thing we saw is not information but revelation. दूसरी चीज हमने देखा वो है जानकारी नहीं लेकिन प्रकाशन। पास्टर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा, पास्टर मेरा बिजनेस गली में नहीं। अरे तेरा घर में गली में हो या छत पे हो, तेरा बिजनेस बढ़ेगा। तुम्हारा आमीन ऐसा बोल रहा है जैसे खुदा पे मेहरबानी करे। आमीन, हालेलुया। प्लीज लिसन, मेहरबानी सुने। आई एम नॉट हियर टू वेस्ट माय टाइम। और देखिए अपना समय बर्बाद करने नहीं है यहाँ। इफ यू टेक दिस वर्ड, अगर इस वचन को आप लेंगे, you could be a millionaire in Jesus name. आप मिलियनेयर बन जाएंगे यीशु के नाम में। Hallelujah. कहे हालेलुया। Yes, don't worry, don't फिक्र worry. मत करें, फिक्र मत God करें। is raising up millionaires. परमेश्वर मिलियनेयर लोगों को खड़ा कर रहा है। Yes, yes. You think everybody died in COVID? No, sir. Some became millionaires. आप सोचते हैं कि सभी लोग कोविड में मर गए? नहीं नहीं, कुछ मिलियनेयर यानी Pastor, करोड़पति really बन show गए। me one. I can show you. You'll be jealous of them. I'll need to pray for you more then. I'm telling you, sir. कह रहे हैं आपसे, पब्लिक नोट छापती है। जो नोट छापा कोविड में, बैठे बैठे जो गाने गए बेचारे गए, खुदा ने उनको टिकट दे दिया। सच बोल रहा हूं। लेकिन जो बच गए उन्होंने बहुत सारे नोट छापे सर। विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। समबडी से आई रिसीव दिस वर्ड। बुद्धि और समझदारी। सभी लोग कहे मैं ग्रहण करता हूं। नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज, क्योंकि आज तुम्हारी क्षमता नहीं है। जो लोग देख रहे हैं मुझे, अगर तुम्हारी क्षमता है तो टाइप आमेन इन द चैट बॉक्स एंड शेयर इट विद समबडी। कम ऑन, लेट्स गो टू वर्स 14 राइट नाउ। 13 14, कम ऑन। चले जाएंगे सीधे 14वें वचन में। Luke 14, sorry, I'm so sorry. And they talked together of all these things which had happened. वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करके जा रहे थे। Now, what happened in verse 15? और देखिए 15वें वचन में क्या होता है। Verse 15. Now here's the turning. So it was while they were talking, while they were reasoning. Everyone said debating. और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे। लेकिन ऐसा कैसा, ऐसा कैसा यीशु मसीह मारा कैसा? Said everyone while they were conversing and reasoning. Now this word in the Greek is the word debating. Reasoning is vichar vimash, but when you go into doubt, that becomes debate. जब संदेह में जाते हैं तो देखिए वो बहसबाजी बन जाती है। So Jesus himself drew near and went with them. तो यीशु खुद पास आकर उनके साथ हो लिया। Now one of the reasons why Jesus drew near them was because they were talking about him. और देखिए एक वजह कि यीशु उनके करीब आ गए वो यह था कि वे लोग यीशु के बारे में बात कर रहे थे। They were not talking about the stock market. वे स्टॉक मार्केट के बारे में बात नहीं कर रहे थे। They were not talking about the war. ना ही वो लड़ाई के बारे में बात कर रहे थे। They were talking about him. वे उसके बारे में बात कर रहे थे। Your conversation, my third point, तीसरा will मुद्दा। either draw Jesus near to you or away from you. आपकी बातचीत जो है या तो यीशु को आपके करीब लाएगी या यीशु को आपसे दूर ले जाएगी। To utte बैठे you use the F and the B word, food and beverage. किसी को समझा ही नहीं। रिक्शा वाले को बोला F, go. कितने लोग सुन रहे हैं? इसकी मां एंड उसकी बहन सब मुंह में तेरे गाली ही रहता है। घर में गाली, कुत्ते को गाली, रिक्शा वाले को गाली। हालांकि रिक्शा वाला भी वापस बोल देता है कुछ वो भी चुप बैठने वाला नहीं है। सब मुंह में गाली गलोची है। ब्लडी, दिस दैट, ऑल दिस एफ एंड बी एंड ऑल दैट्स वर्ड्स यू टॉक। योर माउथ, आपका मुंह, द वर्ड्स दैट यू टॉक जिन तरह के शब्दों को आप बोलते हैं with your wife, आपकी पत्नी से, with your father, आपके पिता से, with your mother. आपकी माँ से। Some of you don't speak well with your father and mother. आप में से कुछ लोग अपने माता पिता से भी अच्छे से बात नहीं करते। This is because they are old.
और बस क्योंकि वो बुजुर्ग बूढ़े हो गए। You don't speak properly to your husband. You don't speak properly to your wife. And then you're anointing the house. तेल लाए आप अपने- तुझे मातेर तेल का सता. फिर आप घर को तेल लग से अभिषेक करते हैं। Don't put oil. Put paint on your head. तेल नहीं, पेंट लगा अपने No, सिर no. पे। Put the oil. Brother pastor has given. Put the oil. Put the oil in your mouth. Grease. अच्छा चलेगा. करके. No, just think about it. सोचिए इस बारे में। Just think. The Bible says they were talking about Jesus. बाइबल कहती है कि वे यीशु के बारे में बातचीत कर They रहे were थे। talking. अरे वो मर गया. Yeah, man. I don't know. I was thinking he would become the king, the next king. Yeah, but he died. Nasha, I was so disappointed. They were talking about Jesus. वे यीशु के बारे में बातचीत कर They रहे were थे। not talking about Herod. हेरोदेस के बारे में बात नहीं कर रहे They थे। were talking about Jesus. वे यीशु के बारे में बातचीत कर My रहे थे। question to you, look at my finger. मेरा सवाल ध्यान से सुनिए। Whom are you talking about? Are you talking about more about your pastor or you're talking about Jesus? किसके बारे में आप बात करते हैं? क्या आप अपने पासबान के बारे में ज्यादा बात करते हैं या यीशु के बारे में? You should not have done so late now on Saturday. Yeah, how I went. Preach it, I will. What do you want? God to come home or what and give you home delivery? He's not Zomato. He's Lord. Hallelujah. हालेलुया। जोर से बोले Hallelujah. उससे बोला हालेलुया। Yes, listen carefully. सुनिए ध्यान से। So, write this down. The third point. Many Christians don't experience the power of God in their lives. The presence of God is because of the way they talk. बहुत सारे मसीह देखे परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की उपस्थिति का अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते हैं उनके बोलने के तरीके वजह से। Notice, they did not pray. वो गौर करें, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। Come, Lord Jesus. आ प्रभु यीशु, We are walking. हम चलते जा We रहे are हैं, disappointed. हम निराश हो गए। Come, Lord Jesus. आजा प्रभु यीशु, Walk with us, Lord. हमारे साथ चल प्रभु। Walk with me, oh my God, through the darkness of the night. Be at my side, oh Lord. He didn't sing any song. No song. कोई गाना नहीं। कुछ गाद पीछे सोचो ना, बेचारा वो ड्रमर पीछे बढ़ा रहा है डगा डगा डगा, कुछ ऐसा नहीं है। They were only talking. Write it down. Your speech is important. और लिख लीजिए, आपकी बोलचाल बहुत मायने रखती है। तू कैसे अपने हस्बैंड से बात करती है, तू कैसे अपने बच्चों से बात करता है, एकदम कैसे भी होता है, वो प्रेजेंस को रोकती है। Said everyone, the presence of God is hindered. परमेश्वर की उपस्थिति रोक देती है। जोर से बोलिए। The presence of God is hindered, and then you're putting oil, and you're wondering why the oil is not working. परमेश्वर की उपस्थिति में रुकावट आती है और फिर बाद में आप तेल से अभिषेक करते हैं, फिर आप सोचते हैं कि तेल से अभिषेक किया लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा? The dog is receiving, hallelujah. कुत्ता जो है ग्रहण करता है, हालेलुया। The dog is receiving, the blessed, the fish are being blessed. और मछली जो टंकी में वो भी आशीषित हो The जाती है। cat is also saying, somebody sent me a picture, the dog is praying. I said, yeah, because you're not praying. See na, pastor, how nice dog is praying. Ooh, hallelujah, ooh. I love animals. They know I love animals. See, pastor पढ़े doggy prayer करता है। ऐसा तुम prayer करना है, तक लोगन doggy prayer करता तो सर। Doggy prayer करता। I said in few minutes, I said even your cat will start singing hallelujah. अगले कुछ मिनट में देखे तुम्हारी बिल्ली भी जो है हालेलुया गाने लगेगी। Doggy prayer करता। कुत्ता प्रार्थना करता है। Nothing against the dog. और कुत्ते के खिलाफ में कुछ नहीं देखे। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। You still love me after this? Oh, really? I need to preach a sermon on how not dangers of lying now. No, church, this is a very important thing. ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। When people gather together, when Christians gather together, they usually gossip about churches. They usually gossip about men and women of God. देखिए जब They मसीह लोग speak against priests. They speak against nuns. They speak against bishops. They speak against denominations. Listen, it is not our job to speak about pastors, priests, bishops, nuns. It is we have to speak about Lord Jesus Christ. देखिए ये हमारा काम नहीं है कि हम पासबान या नंस या बिशप किसी के खिलाफ में हम बात He's करें। good. No, that fellow is very bad. His eyes are somewhere roaming. What you got to do? Even your eyes are roaming. Along with his eyes, your eyes are also roaming. See how we judge people. देख किस तरह से हम लोगों पर अपना ही फैसला नहीं Yeah, I saw him coming late at 11:30. What were you doing there? I'm telling you. कह रहे हैं आपसे। This is the talk. That's why I don't meet believers. और इसी वजह से विश्वासियों से मिलते नहीं है। वो जो बेचारे लोग दूसरे लोग होते हैं ना, वो लोग एक लड़का इधर काम करता है मॉल में।
I got down from the car. और वो मैं सिगरेट पी रहा था. He's not a Christian. He took the cigarette and he said, Pastor, sorry. I said, क्यों, क्या हो गया? नहीं, sorry. अब जाओ, आगे जाओ. I was like, then my staff told me, actually you were smoking, Pastor. He saw you and just this thing. He said, आप प्रार्थना के लिए आए हैं और मैं ये गंदा काम कर रहा हूं. प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करना, ये छूट जाए. ऐसा प्रार्थना ऐसा कर. हमारा मसीह रहेगा क्या पास्टर, कैसा है? सब बढ़िया है ना, ठीक है ना? हालेलुया. The respect that people have for the presence of God. जिस तरह का आदर सम्मान लोगों में देखे परमेश्वर की उपस्थिति के लिए है. Come on, hallelujah. Don't this thing, don't just this. I'm telling you, this is the truth. This is happening in the world. People of God, it is not only about the oil. It is not only about kissing your Bible. It's not only about you going down on your knees and crying out louder than your dog. No, it is about the presence of God. Your speech. Everyone says speech. और देखिए आपकी बोलने का तरीका, आपके बोलचाल. Why did the Israelites lose the presence of God? और क्यों इस्राएल लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति गंवाई? Why did the serpents come? क्यों सांप अंदर घुसा? Their speech was not proper. क्योंकि उनकी बोलचाल सही नहीं थी. Their speech was not proper. उनकी बोलचाल सही नहीं थी. तू उधर गया था, हाँ गया था, लेकिन नहीं गया था. अरे क्यों तू टेढ़ा सर्प जैसा क्यों घूमता है तू? हाँ गया था कि नहीं गया था? बोल हाँ. झूठ क्यों बोलता है? This is the reason the presence of God doesn't walk with us. और यही वजह है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ नहीं चलती है. Look at somebody and say, let your speech be right. किसी को देखकर के आपकी बोलचाल सही होने दो. Come on, everybody say, let my speech be right. चलिए सभी लोग कहें इस समय होने दे प्रभु, मेरी बोलचाल सही हो जाए. Put that scripture on the screen. I want to see. I want to close right now. I want to close. This is very powerful. ये बहुत ही समझशाली है. Can I tell you something? क्या आपसे कह सकते हैं? तुमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. तुमको ज्यादा बड़ा प्रार्थना ढांग करने की जरूरत नहीं. तुम्हारा अगर स्पीच बराबर रहेगा, सब कुछ तुम्हारी जिंदगी में सही हो जाएगा. Just check your speech. बस अपनी बोलचाल को जांच लीजिए. Somebody say, I received this word. कोई तो कहे मैं ग्रहण करता इस वचन को. Come on, everybody say, though I walk through the valley of the shadow of death, the Lord is with me. The Lord is my comforter. The Lord is my shield. I shall lack nothing. Though I walk through the valley of the shadow of death, चाहे मैं अंधकार से अपनी मौत की I तराई में will घुस fear जाऊं, no evil. मैं नुकसान से नहीं डरूंगा. You need to speak like that. आपको सब बोलने की जरूरत है. Somebody say, I received the word. कोई तो कहे मैं वचन को ग्रहण करता हूं. Hallelujah. हालेलुया. Louder. Somebody say, hallelujah. जोर से कहे हालेलुया. Yes. Today check your life. आज अपनी जिंदगी को Today जांच check लीजिए. your speech. आज आपको बोलचाल जांच I लेनी है. promise you tonight, और आज की रात वादा करते the हैं, Lord will draw near. प्रभु नजदीक आएगा. I said the Lord will draw near. हमने कहा, प्रभु आपके करीब आएगा. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. And can I finish this right now? Look, so it was while they conversed that Jesus himself drew near and went with them. Everyone say, went with them. That is the presence of Jesus. और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु खुद उनके पास आकर उनके साथ हो लिया. Imagine when you sit in your car. जरा कल्पना करें कि आप अपनी कार में बैठे Lord, हैं. I'm sitting in the car. प्रभु मैं कार में बैठ रहा Lord, I हूं. cover this car with the blood of और Jesus. प्रभु इस कार को मैं यीशु के When लिए you sit in the rickshaw, Father, I thank you for your presence. Now you don't need to pray shakara barabara, but the driver will get scared then. Just pray. बस धीमी आवाज में प्रार्थना. The train is coming. You're about to enter in the train. I cover myself with the blood of Jesus. I pray for your holy angels around me. Come on, help me right now. Yes, come on, help me right now. Yes, this is the way you do it. और ये तरीका है करने का. Your plane is about to take off. आपकी प्लेन जो है उड़ान लेने वाली Don't है. look here and there यहाँ वहाँ मत देखिए like some owl. उल्लू के जैसे. No. नहीं, Just you close your eyes आंख बंद करिए and pray और प्रार्थना करें and say, Father, I commit this flight to you. और कहें कि पिता इस उड़ान को मैं तुझे समर्पित When करता you're हूं. landing, जब आप उड़ान नीचे You उतर रहे pray. हो आप प्रार्थना करें. come on, help me somebody. I said, help me somebody. Did you see your life becomes prayer? देखिए आपकी जिंदगी ही प्रार्थना बन जाएगी. Your life becomes a life of prayer. आपका जीवन जो है प्रार्थना का जीवन बनेगा. Come on, somebody. You're taking a cup of tea. मान लीजिए आप एक चाय का प्याला ले रहे हैं. Don't मुंह में मत डाल. Just no need to say, no need to bow like this, like that and all. No need to bow. ऐसा झुकने की भी जरूरत नहीं है. Just quietly say, thank you, Jesus. बस धीमी आवाज में आपको कहना धन्यवाद यीशु. Thank you for this tea. धन्यवाद इस चाय के लिए. I'm teaching you something. अब वो सिखा रहे हैं. Every time you drink water, हर बार जब आप पानी पीते I हैं cover this water with the blood of इस Jesus. पानी को मैं ढकता हूं यीशु के लहू से. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Come on, help me somebody. चलिए कोई तो मदद करे. अरे पूरा दिन तू लॉर्ड का ये कर रहा है. लॉर्ड तेरे साथ चिपक जाएगा रे. हालेलुया.
Come on, चलिए, hallelujah. हालेलुया। The presence of God will go with you. परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ जाएगी। Do you know, every time I eat my food, देखिए, हर बार जब 5 बजे अपना खाना खाते हैं, I will pray for the church. कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे उससे। Father, I thank you for all my leaders. I cover all my leaders. Every church service, I cover them with the blood of Jesus. I thank you for this food. I bless it in Jesus' name. कितना टाइम लगा? 20 सेकंड भी नहीं लगा. I'm telling you, just imagine everybody starts doing like that. जरा कल्पना करें, अगर हर कोई ऐसा करने लग जाए, There will be revival. बेदारी आ जाएगी। There will be great revival. एक बड़ी बेदारी आ जाएगी। Somebody say hallelujah. कोई कहे हालेलुया। You begin your day with prayer. आप प्रार्थना से दिन की You शुरुआत end करते your day with prayer. हैं। आप दिन की खत्म भी करते हैं प्रार्थना के साथ। Just your whole day you're thanking the Lord. पूरा दिन आप प्रभु का धन्यवाद You're in करते हैं। your car. You're not putting some crazy, some songs. आप कार में जब बैठते हैं तो कुछ ऐसा बेतुका गाना नहीं बजाते। Worship is going on. आराधना का Come on, somebody. गाना बज रहा है। You get up in the morning. Don't put ये 4 मारे गए, उसने bomb छोड़ा. Nowadays in the news there is nothing, so they will give sound effect. Fee, dish, fee, dish. I'm waiting for the news. Half the time it is only that fee, dish, fee. Come on, help me somebody. चलिए, Now they don't have anything to say. अब उनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं तो। मैं बोला इसमें न्यूज किधर है? आधा टाइम तो खाली साउंड इफेक्ट है। ये तो बॉलीवुड से भी अच्छा है। I don't put all this nonsense. ये सारी बेतुका चीजें नहीं देखते। I put the worship on. आराधना का In my room there is worship. कमरे में आराधना की धुन बजते हैं। I tell you, कह रहे हैं आपसे, you come and touch somebody, the power of God will hit you. आप आकर किसी को छूते परमेश्वर की सामर्थ आपको छू लेगी। Come on, everybody say how to attract the presence of God. सब लोग कैसे परमेश्वर की उपस्थिति को आकर्षित Come on, करना जोर होता से है। बोलिए. जोर से कहें। Listen, one day I went. Somebody called me to pray for a diamond merchant. और पासवान जी को बुलाया गया था किसी डायमंड मर्चेंट के लिए, एक हीरे के व्यापारी के लिए प्रार्थना बाजे लोगों डरो मत, पास्टर को डायमंड नहीं दिया उसने. हाँ, 1-2 डायमंड दिला असतं तर का ना, काही देऊ ना. डायमंड मर्चंट बरे दिले असतं पैसे. Listen, so I went to pray over that diamond merchant. So somebody called me and said, Pastor, just pray over the diamond merchant. When I entered his cabin, posh cabin. में गए। Listen to this. सुनिए से, Posh cabin. एकदम जगमग वाला। And there was one. If it's God, take it. If it's not God, silence it. There was a sound playing over there. और वहां पर एक साउंड चल रहा था। Meow, meow. Hello. I like that. Hallelujah. They were speaking something. I don't know. You all are smart. Even while we are talking. And I asked that person who took me. I said, ये कितना देर चलते रहता है? ये बोलता है पूरा दिन चलते रहता है. पूरा दिन. ये बोलता है कितना भी बड़ा आदमी आए, ये चलते रहेगा. बोला अच्छा है. हमारे मसीह के घर में तो और भलता कुछ चलते रहता है, इसीलिए इतना बड़ा व्यापारी है. How many of you listening right now? ये सुन रहे हैं इस वक्त? Do everything to attract the presence of God. सब कुछ करो बस परमेश्वर की उपस्थिति को आकर्षित करने के लिए करो। Lady, if you listen to my word, you will not be poor long. Surely goodness and mercy shall begin to follow you all the days of your life. Somebody say, I receive this word. ये कि भलाई और करुणा जीवन भर आपके पीछे Come on. पीछे आती रही, कोई तो ग्रहण करे इस वचन को। It's one thing. Can I tell you something? क्या आपसे कह सकते हैं? Say it everyone, the Lord is my shepherd. सब लोग प्रभु मेरा चरवाहा है। Come on, खत्म. आ जाओ रे सब लोग, म्यूजिशियन आ जाओ. Say it everyone, the Lord is my shepherd. बोले प्रभु मेरा चरवाहा है। शेपर्ड हमारे आगे रहता है कि पीछे रहता है? एक सुना भी, the Lord is my shepherd. प्रभु मेरा चरवाहा है। ऐसा करो, सभी लोग ऐसे करो जल्दी से. सब लोग ऐसा करें। तो तुम्हारे सामने कौन है? शेपर्ड है, शेपर्ड है. सुनो, लॉर्ड तेरा शेपर्ड है. ओके, अभी डेविड कहता है, श्योरली गुडनेस एंड मर्सी, करुणा भलाई पैसा मेरे पीछे आएगा. क्यों आएगा मालूम है? क्योंकि तुम शेपर्ड के पीछे भाग रहे हो और करुणा भलाई जो भी है तेरे पीछे भाग रही है. दिस इज इट. यही है बात। I submit to you, the people of the world have understood it, but the Christians need to understand it. इस बात को आपके सामने सौंपते हैं कि दुनिया के लोग इस बात को समझ गए हैं, लेकिन मसीहियों को अभी भी समझने की जरूरत है। सगळो दिस त्यांच्या घरा किती ना झालं किती चलता. पूरे दिन भर उनके घर में कुछ ना कुछ चलता रहता पण है। आमचे you go to the Christian house, I'm sitting. अगर आप किसी मसीह घर में जाएंगे, 5 महल है,
2 मोर्चे असतात. किती लायला पुराय ये सब क्या चल रहा है? पास्टर पळे तुम्ही पळे असं अभी आप कोण भी देखिए, करते आप भी पुरा देखो. पास्टर बायबल किती म्हणता कोण आणि कितलं दिस असतात असे तुझे दिस झाले you're watching all nonsense ये सब बेतुका चीजें आप देखते हैं. half the time oh please open it and see if I'm telling you laugh at what is going on. Said everyone attract the presence of God. सब लोग कहें परमेश्वर की उपस्थिति को आकर्षित करो. Come on everybody attract the presence of सब लोग God. कहें परमेश्वर की उपस्थिति को आकर्षित करो. Hallelujah. कहे हालेलुया. The first one पहला है clarity. स्पष्टता. When I go towards the presence of God जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति की तरफ जाता I हूँ receive clarity. मैं स्पष्टता को पाता हूँ. Second दूसरा understanding, not information but revelation. समझदारी. देखिए जानकारियां तो नहीं लेकिन प्रकाशन. सब जन बोलो प्रकाशन. सब लोग कहें प्रकाशन. प्रभु मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये है मैं क्या करूं इसका मुझे प्रकाशन दे और प्रभु तुमको सिखाएगा. And the last one और आखिरी Lord प्रभु my house is a simple house. मेरा घर एक छोटा सा घर है. मेरा घर में अभी बारिश आने वाली इधर से पानी आएगा उधर से प्रभु मेरा घर में बहुत गरीब आदमी हूं मेरे घर में तेरा ब्लेसिंग आने दे. हालेलुया. हालेलुया. द प्रेजेंस ऑफ गॉड. परमेश्वर की उपस्थिति. प्रभु मैं बहुत नुकसान में हूं प्रभु. आई वांट समथिंग इन माय लाइफ. प्रभु मुझे कुछ तो चाहिए मेरे जीवन में. आई वांट द प्रेजेंस ऑफ गॉड. मुझे परमेश्वर की मैं कोई उपस्थिति बड़ा चाहिए. पास्टर प्रोफेट अपोस्टल नहीं हूं प्रभु. मैं एकदम साधारण आदमी हूं. आई हैव नो जॉब लॉर्ड. हाउ कैन आई डू दिस? पर मेरे पास कोई नौकरी नहीं. कैसे मैं कर सकता 3 हूं? things I shared with you तीन today. चीजें आपके साथ बांटे गए आज. If you do this, अगर आप ये करेंगे you will become a Joseph to your family. आप अपने परिवार के लिए यूसुफ बनेंगे. You will become an Esther to your home. आप अपने घर के लिए एस्तर बनोगे. Oh, lift your hand and shout a hallelujah. अपने